السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 104 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ یونس آیت 1 سے آیت 20 تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ مہمان ہو جاتے ہیں۔ مجلس پر خاص کرنے یا کسی دوسرے بات میں مشغول ہونے تک فرشتے انہیں اپنے آغوش میں لیے رکھتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، قرآن مجید جو ایسی اللہ کی معجزاتی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس کو پڑھنا بھی کیا ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، اور فرشتے اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جب انسان سیکھتا ہے اللہ کی کلام کا تو وہ بھی باعث نیکیوں کا اجر اس کے نامۂ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر یہ پڑھنا پڑھانا اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آخرت میں یہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے والدین کو اور ہم سب کی اولادوں کو اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ یونس آیت 1 to 20۔ سورہ یونس کا تھوڑا سا انٹرو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ کہ سورہ یونس کے بارے میں کیا ہے۔ سورہ یونس دراصل کیا ہے، یہ سورت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اور مکی صورتوں کا معنی کیا بتایا تھا کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہے، تو یہ صورت مکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ صورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے، جن کا ذکر بھی انشاءاللہ آیت نمبر 98 میں آئے گا۔ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے اہم جو مسئلہ تھا وہ اسلام کی بنیادی عقائد کو ثابت کرنا تھا، اسی لیے اکثر جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان کی جو بنیاد ہوتی ہے اس پر زور دیا جاتا ہے، یعنی کہ توحید، رسالت اور آخرت پر کہ جو سبجیکٹ ہوتی ہے اس پہ بات کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اسلام پر عرب کے مشرکوں کے اعتراض کے جواب بھی دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام پر جو یہ مشرکین مکہ اعتراضات کرتے تھے قرآن پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان سب کے باتوں کا جواب دیا گیا ہے۔ ان کے غلط طریقے رویے کی کیا کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی، نندا کی گئی ہے، انہیں وارننگ کیا گیا ہے۔ حضرت نوح اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات بھی کیا ہے اس سورے میں ہمیں ڈیٹیل سے ملیں گے۔ ان میں کافروں کے لیے یہ سبق ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی مخالفت میں جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس کے رزلٹ میں ان کا انجام بھی کیا ہونے والا ہے، ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے یہاں پر اس صورت میں تسلی کا سامان ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ یونس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس ويبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ الف لام را آیت 1 دیکھیں، یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ ہمیشہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب کیا ہے، اس میں حکمت کی آیات ہے، یہ کتاب کیا ہے، پر حکمت سے لبریز ہے، حکمت پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 2 دیکھیں، کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی ہے، یعنی قرآن کریم کی آیتیں نازل کی ہیں کہ سب آدمیوں کو وہ ڈرائے، سارے لوگوں کو وہ ڈرائیں، اور جو وہ ایمان لائے ہیں اور ان کو یہ خوشخبری سنا دے، ان کے رب کے پاس سے ان کو پورا اجر اور مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے اس پر کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ مکہ میں تھے، اور اس سے جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصے تک ان کے درمیان موجود تھے، انہیں صادق الامین کہتے تھے، نیک اور امانت دار کہتے تھے، صالحین کہتے تھے، وہی مکہ کے جو قریش تھے بت پرستش کرنے والے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया, रिसालत का बारे में बताया और आखिरत के बारे में डराया, तो इन्हीं लोगों को बड़ा हैरत होगी, बड़ा ताज्जुब हो गई कि ये लोग कैसे हैं कि इन लोगों ने जो है ये जो है मतलब कि आप वसल्लम कैसे हैं कि इन्हीं में आ गए, यानी कि इंसानों में से आ गए। उनको इस बात का हैरत हुई कि इस पर ताज्जुब हुआ उनको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी एक रसूल इंसानों में से कैसे आ गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं अजबन अन औहैना इला रजुलिन, क्या उन लोगों को इस बात पर ताज्जुब है, यानी इस बात पर उन्हें ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसानों में से ही एक इंसान को यानी एक आदमी को रिसालत और वही के लिए चुन लिया, क्योंकि उनके हमजिन्स होने की वजह से वो सही मानों में ही उनकी रहनुमाई कर सकता है। यानी कि अगर इंसान में से इंसान सिलेक्ट नहीं होता रिसालत के लिए, तो फिर आप देखिए कि वो कैसे रहनुमाई कर सकता था ना, ये इम्पॉसिबल नहीं थी। अगर कोई मान लीजिए फरिश्ता होता या फिर कोई जिन्नात होता या फिर कोई और मखलूक होता, तब तो लोग यही बहाने बनाते, "ए अल्लाह तबारक तआला हम इनकी कैसे इत्तिबा करें, ये तो हमें दिखते नहीं है, या हम इनकी कैसे इत्तिबा करें, इनकी और हमारे पावर में भी क्या है डिफरेंट है, ये तो हाई पावर वाले हैं, इनके पास तो आला कुव्वतें हैं।" तो तब उसके बावजूद ये बहाने बनाते। तो अल्लाह तबारक तआला ने इसीलिए इंसानों में से इंसान के लिए रिसालत और रसूल के लिए चुना। और अगर वो किसी और जिन्स से होते यानी फरिश्ता या जिन्नात होते, तो दोनों ही सूरतों में उनकी इत्तिबा नहीं की जा सकती थी और फिर रिसालत का असल मकसद भी क्या होता, ख़त्म हो जाता। तो उनको इस बात पर ताज्जुब होता था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान कैसे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि उनको इस चीज़ पे कैसे ताज्जुब है, हैं? कैसे ताज्जुब हो गया कि हमने एक जो है ना वही के लिए जो सिलेक्ट किया, जिसको चुना, तो वो क्या है, एक इंसान है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि हम किसी और मखलूक उनके पास भेज देते। तो जो रसूल है उनका काम क्या है, लोगों में आना और फिर लोगों के दरमियान में जो है ना तबलीग करना और उनको रिसालत, तौहीद, रिसालत और आखिरत के बारे में उनको खबरदार करना। और यहाँ पर जो अल्फाज आया है कदमा सिद्क़िन इंदा रब्बिहिम, आयत 2 में देखेंगे आप लोग। तो जो यहाँ पे अल्फाज आया है कदमा सिद्क़िन, तो यहाँ पर इससे मुराद है कि बुलंद मर्तबा और अज्र अहसन, ठीक है। और वो अमल साले है जो एक मोमिन आगे भेजता है, ठीक है। कदमा सिद्क़िन से मुराद क्या है कि इसका मतलब क्या है, बुलंद मर्तबा। कदम आप देखिए कदम के माने क्या होते हैं, कदम के माने होते हैं आगे बढ़ना ना। आगे जैसे कदम इंसान अपने पाँव जो आगे बढ़ाता है ना, कदम का माने तो क्या होता है कि आगे बढ़ना, दौड़ लगाना, सबसे आगे निकल जाना, ठीक है। तो कदम का मायने क्या होता है, पेश कदमी करते हुए आगे बढ़ना, दर्जे और मर्तबे की बुलंदी के भी आगे जो है निकल जाना, उसके हुसूल इख हुसूल हासिल करना, यानी कि ऐसा चलना, ऐसे आगे बढ़ना कि दर्जा और बुलंदी में भी आगे निकल जाना। और सिद्क़ माने सच्चाई के होते हैं, ठीक है। सिद्क़ माने सच, सच वाले, सच्चाई वाले। तो सिद्क़, कदम सिद्क़ से मुराद ये है बुलंद मर्तबा, अज्र एहसन और वो अमल साले, वो नेक अमाल जो एक मोमिन अपने आगे भेज देता है, यानी कि इस दुनिया में रहकर अल्लाह की रज़ामंदी की खातिर अच्छे-अच्छे अमाल अपने आखिरत के लिए वो भेज देता है, आगे भेज देता है, जो अल्लाह की बारगाह में वो कबूल हो जाए, दर्जा कबूलियत रखते हों ऐसे अमाल सालेहा, ठीक है। तो उन्हें कदम सिद्क़ कहते हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 3 है। और आयत नंबर 2 में अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने कहा, इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। काफिरों ने कहा कि ये शख्स तो बिलाशुबह सरी जादूगर है। आप देखिए कि जब काफिरों को ना, जब उनको ये मालूम हो गया कि अब हम इनकार के लिए हमारे पास कोई और हमारे पास दलील दलील नहीं बची है, कोई प्रूफ नहीं बचा है, कोई हमें कोई बहाने नहीं सोचते हैं, तो उन्होंने ये कहकर छुटकारा हासिल कर लिया। जब उनकी कुछ ना चली तो उन्होंने ये बहाना बना दिया कि ये तो क्या है, एक जादूगर है ना। तो वो तो अपने बात में ही खुद ही क्या होते कंफ्यूज थे, कभी वो जादूगर कहते थे, कभी वो मजनू कहते थे, कभी वो दीवाना कहते थे और कभी कुछ ना कुछ ऐसे ही वो आप सल्लम को ब्लेम करते थे। आयत देखिए, आयत नंबर 3 है। बिलाशुबा तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन को 6 रोज में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर कायम हुआ। वो हर काम की तदबीर करता है, उसकी इजाजत के बगैर कोई उसके पास सिफारिश करने वाला नहीं है। ऐसा अल्लाह तुम्हारा रब है, सो तुम उसकी इबादत करो, क्या तुम फिर भी नसीहत नहीं पकड़ते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर भी अपनी जो तौहीद रुबूबियत है ना, उसका इजहार किया गया है। क्या आप
क्या तुम नहीं देखते कि वही अल्लाह है ना जिसने इस सातों जो है जो जिसने तुम्हारे लिए ये सातों आसमान और ज़मीन को सबको बना दिया, वो भी कितने दिनों में? बहुत बरसों और जो है ना सालों में नहीं, बल्कि क्या है 6 रोज़ में पैदा कर दिया। फिर अल्लाह तबारक तआला अर्श पर कायम हो गया, अर्श पर उसने अपना मुस्तवी कर लिया, बुलंद कर लिया अपने आप को, और फिर हर काम की वो तदबीर करता है, प्लानिंग्स करता है। हर काम को करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक तआला है, और उसकी इजाज़त के बगैर अल्लाह के पास ना कोई सिफ़ारिश भी करने वाला नहीं है। यानी अब देखिए, जो मुशरिकीन मक्का था ना, उनके अकीदा क्या था कि ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन अल्लाह के साथ औरों को भी इबादत करते थे, अल्लाह ताला के साथ औरों को शरीक ठहराते थे। तो उनका अकीदा ये था कि जिनकी वो इबादत करते हैं ना, तो अल्लाह के यहाँ उनकी सिफ़ारिश करेंगे वो लोग और उनको अल्लाह के अज़ाब से छुड़ा लेंगे। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, वहाँ अल्लाह की इजाज़त के बगैर तो किसी की सिफ़ारिश कोई करने की किसी को इजाज़त दी ही नहीं जाएगी। हुँ, तो तुम क्यों नहीं नसीहत पकड़ते? अफ़ला तज़क्करून, तो तुम क्यों नहीं नसीहत हासिल करते? आयत नंबर 4 देखिए। तुम सबको अल्लाह ही के पास जाना है। अल्लाह ने सच्चा वादा कर रखा है। बेशक वही पहली बार पैदा करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, ताकि ऐसे लोगों को जो ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक काम किए हैं, इंसाफ के साथ जज़ा दे। और जिन लोगों ने कुफ्र किया है और उनके वास्ते खौलता खौलता हुआ पानी पीने को मिलेगा, और दर्दनाक अज़ाब होगा उनके कुफ्र की वजह से। तो वही बात है यहाँ पर, जो जिन्होंने ईमान लिया है और जिन्होंने अच्छे काम किए, तो फिर क्या है, उनके लिए आखिरत में इनामात हैं। और जिन्होंने नहीं माना अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और पैगामात को नहीं माना, तो फिर उनके लिए क्या है, बुरा अंजाम है। उनके लिए आखिरत में क्या है, खौलता हुआ पानी है और पीने को, और उनके लिए ठिकाना कहाँ है, जहन्नुम का है। आइए देखिए आयत नंबर 5। वो अल्लाह ताला ऐसा है जिसने आफ़ताब को चमकता हुआ बनाया और चाँद को नूरानी बना दिया, और उसके लिए मंजिलें मुकर्रर की हैं, ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो। अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बेफ़ायदा नहीं पैदा की हैं। वो ये दलाइल उनको साफ-साफ बतला रहा है, जो दानिश रखते हैं, यानी जो अक्ल रखते हैं, जो समझ-बूझ रखते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कैलेंडर है उसके बारे में बताया है। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए सूरज को, ठीक है? तो आफ़ताब से मुराद यहाँ पर सूरज है। वजह अला जा अल शम्स, शम्स से मुराद क्या है? सूरज है। और शम्स को बनाया अल्लाह तबारक तआला ने चमकता हुआ, नूरानी, है ना? वल कमर नूर, और अल्लाह तबारक तआला ने चाँद को बनाया नूरानी। तो चाँद को नूर से मुनव्वर किया और सूरज को रोशनी से मुनव्वर किया। और फिर अल्लाह तबारक तआला ने चाँद को इस तरीके से बनाया कि उसकी मनाज़िलें हैं, उसकी मंज़िलें मुकर्रर की, ताकि वो बरसों की गिनती, हिसाब-किताब क्या करे, मालूम कर लिया करे। यानी हमने जो है, अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि हमने चाँद की जो मंज़िलें मुकर्रर कर दी है ना, उनकी जो मंज़िलें जो मुकर्रर हैं, आप देखिए कि जो रोज़ चाँद होता है ना, आसमान में वो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा बढ़ जाता है। डेली उसका जो है 29 या 28 उसकी जो है मंज़िलें तय होती हैं, है ना? 28 मंजिलें या 30 मंजिलें उसकी होती हैं, और डेली कहीं न कहीं उसका जो है जगह चेंज होती रहती है। तो जो डेली उसकी जो जगह चेंज होती है, उसी को जो है हम लोग जो कमरी कैलेंडर में तारीख कहते हैं। एक नई तारीख हो गई, आज चाँद की 11 है, 12 है, 13 है। रात और एक दिन में अपनी मखसूस हरकतें या चाल के साथ वो तय करता है, और ये तकरीबन 28 मंजिलें हैं। हर रात को एक मंजिल पर पहुंचाता है वो, जिसमें कभी जो है कोई भी गलती भी नहीं करता है। पहली मंजिल में वो छोटा और बारीक नजर आता है, फिर बातदरीज बड़ा होता चला जाता है, हत्ता कि 14वीं या 15वीं शब में मुकम्मल वो पूरा का पूरा हो जाता है, कंप्लीट होता है ना, जिसे कहते हैं चांदवी का चांद। फिर उसके बाद फिर वो सिकुड़ना, यानी कि घटना शुरू हो जाता है, हत्ता कि आखिर में वो 1 या 2 रातें छुपा भी रहता है, और फिर हिलाल बनकर तुलुए हो जाता है। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कैलेंडर बनाया हमारे लिए, ताकि हम क्या कर सकें, इसके लिए हिसाब-किताब कर सकें, ताकि हम अपनी जो तारीखें हैं, इद्दत की मुद्दत है, या जो हज का जो महीना है, या रमज़ान का जो महीना है, वो सब इससे हम काउंट कर सकें। ठीक है? तो हिसाब-किताब इंसान मालूम कर सके। यानी चाँद की जो मनाज़िल है और उसकी रफ़्तार से ही महीने और साल बनते हैं, जिनसे तुम्हें हर हिसाब-किताब करने का तो ज़रिया तुम्हें मिल जाए। यानी साल होता है 12 महीने का, और महीना 29 या 30 दिन का होता है, और 1 दिन 24 घंटे का, यानी रात और दिन का।
तो जो दिन में दरअसल क्या है 12-12 घंटे और सर्दी गर्मी में भी कम या ज़्यादा होती रहती है। तो ये इस तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या बना दिया, इस्लामी कैलेंडर बनाया, शमसी कैलेंडर बनाया, ताकि इंसान हिसाब किताब कर सके और अपनी जो है ना काउंट कर सके चीज़ों को। तो अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमत है। और आप देखिए ये चाँद सूरज भी क्या है, अल्लाह के फर्माबरदार हैं, अल्लाह के ताबेदार हैं। एक इंच भी ना आगे बढ़ते हैं, ना घटते हैं, पीछे हटते हैं। आयत 6 देखिए, बिलाशुबा रात और दिन के एक के बाद दीगर आने जाने में और अल्लाह ताला ने जो कुछ आसमान और ज़मीन में पैदा फरमाया, उन सब में उन लोगों के वास्ते दलाइल हैं, जो अल्लाह का डर रखते हैं। यानी चाँद और सूरज के आने जाने में अल्लाह की निशानी है, ठीक है? अल्लाह की निशानी है इन सब में कि रात आती है और फिर दिन आती है और फिर दिन और रात क्या होते हैं, कभी बड़े होते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं। तो सब अपने अल्लाह की ताबेदारी के साथ लगे हुए हैं। कोई ज़रा-सा भी अल्लाह तबारक तआला की नाफ़रमानी नहीं करता है, सिवाय इंसानों के। इंसानों को अल्लाह ने हुक्म दिया, तो वो अल्लाह की नाफ़रमानी करते हैं, लेकिन अल्लाह की बाकी तमाम मख़लूक़ अल्लाह के ताबेदार है, इताअत-गुज़ार में लगी हुई है। कभी भी ज़रा-सा भी कोई पीछे नहीं हटता है अल्लाह की ताबेदारी से। आयत 7 देखिए, जिन लोगों को हमारे पास आने का यकीन नहीं है, वो दुनियावी ज़िंदगी पर राज़ी हो गए हैं और उसमें जी लगाए बैठे हैं, और जो लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं, और ऐसे लोगों का ठिकाना उनके अमाल की वजह से दोज़ख है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, आयत नंबर 7 और 8 देखिए, कि ला यरजूना लिक़ाअनल्लाहि, यानी अल्लाह के सामने खड़े होने की उन्हें अल्लाह से मुलाकात की कोई तवक्को नहीं, कोई उम्मीद नहीं, ख़याल ही नहीं करते हैं, ज़हन से ही नहीं गुज़रता है, कि ईमान ही नहीं है, कि सारा जो तवज्जो कहाँ है उनका, वरदू बिल हयातिद दुनिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया है, वत्मअन्नु बिहा, और उससे पूरे मुतमईन, यानी दुनियावी ज़िंदगी से पूरे जो है ना इत्मीनान में है, सुकून में है, कि हम कामयाब लोग हैं। और कुरान के साथ क्या मामला है, वल्लज़ीना हुम आयातिना गाफ़िलून, हमारी आयात से वो क्या है, हमारी निशानियों से वो गाफ़िल है। चाहे अल्लाह के कलाम की आयत हो, चाहे जो पूरे कायनात में बिखरी अल्लाह की निशानियाँ, उनसे क्या है, वो गाफिल हैं, भूले बैठे हैं अल्लाह को। उलाइका मअवाहुन मुन्नार, ऐसे लोगों का ठिकाना आग है। ये एक पूरा तर्ज अमल ज़िंदगी है जिसके ऊपर सज़ा बताई जा रही है। तो हमें गफलत की ज़िंदगी नहीं जीना, क्योंकि गफलत की ज़िंदगी तो वो बसर करता है जो आखिरत पर यकीन नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों का ठिकाना फिर आग है, जो उनकी कमाई के बदले में उन्हें मिलेगा। तो गफलत वाली ज़िंदगी से क्या करें, डरे कि गफलत भरी ज़िंदगी से अल्लाह हमको बचाए। तो उनके बारे में यहाँ पे सज़ा बताई गई है, जिन्होंने दुनियावी ज़िंदगी गुज़ारी और वो दुनियावी ज़िंदगी से क्या है, जी लगाए बैठे हैं और आखिरत को उन्होंने भुला दिया है। तो अल्लाह की आयत को पीछे छोड़ दिया, गाफिल है उन्हें। तो आखिरत में क्या है उनके लिए, ऐसे लोगों का ठिकाना है, उन्हीं के अमाल की जज़ा दोज़ख है। आयत 9 देखें, यकीनन जो ईमान लाए हैं, उन्होंने नेक काम किए हैं, उनका रब उनको उनके ईमान की वजह से सब उनके मकसद तक पहुंचा देगा, नियामतों के बागों में जिनके नीचे नहरें जारी हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात यहदीहिम रब्बुहुम। तो यहदीहिम रब्बुहुम, यहाँ पे इसकी मुराद क्या है, कि यकीनन जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक काम भी किए हैं, और उनका रब उनको उनके ईमान की वजह से उनके मकसद तक पहुंचा देगा। यहदीहिम रब्बुहुम, उनके मकसद तक पहुँचा दिया जाएगा। तो यानी इस दुनिया में जो है ईमान लाने की वजह से, इससे मुराद क्या है, उनके मकसद तक पहुँचा देने से मुराद क्या है, कि क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक तआला उनको पुल सरात पर से गुज़रना आसान फरमा देगा। ठीक है, जो दुनिया में ईमान लाए, जिन्होंने क्या है तौहीद पर डट गए और जो है ना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलमा शहादत का फ़रीज़ा उन्होंने सरअंजाम दिया, अमल सालिहात किए, तो फिर क्या है, अल्लाह तबारक तआला उनके लिए रहनुमाई फरमा देगा। कहाँ, जिसका जितना दुनिया में ईमान का लेवल होगा हाई, उसे उतना ही ज़्यादा पुलसरात पर भी नूर दिया जाएगा। आप देखिए ना, पुलसरात का जो रास्ता होगा, तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ और सुई की नोक से ज़्यादा जो है बारीक होगा, जो दिख भी नहीं रहा होगा, और इतना अंधेरा होगा जो किसी को दिख भी नहीं रहा होगा, और लोग कट-कट के जहन्नुम में गिर रहे होंगे। वो जहन्नुम के ऊपर ऐसा पुल लगा दिया जाएगा। दुनिया में जिसके पास जितना ज़्यादा आज ईमान है, आखिरत में उस पुल पर उनको उतना ही ज़्यादा वो रोशनी दे दी जाएगी, जिसकी रोशनी में वो पुल सिरात का रास्ते को क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। तो जो लोग दुनिया में ईमान लाए, जिन्होंने समय वाताना किया, तो अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों का जो ईमान का नूर है, अल्लाह तबारक ताला उनको पुल सिरात के पुल पर अता फरमा देंगे, तो जिसकी वजह से उनको वो पुल का जो रास्ता है गुजरना आसान हो जाएगा।
ठीक है। तो यहदीहिम रब्बुहुम से मुराद क्या है? क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनके लिए पुलसरात पर से गुजरना आसान फरमा देगा। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उनके लिए एक नूर मुहैया करेगा जिसकी रोशनी में वो चलेंगे। ठीक है। आयत नंबर 10 देखें। उनके मुंह से ये बात निकलेगी सुभान अल्लाह, और उनका बाहमी सलाम ये होगा अस्सलामु अलैकुम। और उनकी आखिर बात ये होगी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है। यानी जो लोग फिर मंजिलें वो तय करके पुलसरात पर से गुजर कर जन्नत में जब जाएंगे और जन्नत में जब वो पहुंच जाएंगे, तो उनके ज़बानों से निकलेगा, उनके जो है ना तस्बीह होगी, सुभान अल्लाह की तस्बीह होगी। यानी अहले जन्नत को अल्लाह की हम्द और तस्बीह में हर वक्त वो क्या होंगे? बिजी रहेंगे, मशगूल रहेंगे। और ज़बान पर उनके हर वक्त अल्लाह की तस्बीह जारी रहेगी, सुभान अल्लाह की। और हदीस में भी आता है अहले जन्नत की ज़बानों पर तस्बीह और तहमीद का इस तरह इल्हाम होगा जिस तरह सांस का इल्हाम होता है। यानी जैसे हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ना, कभी भी एक लम्हे के लिए हमारी सांस का जो आना जाना बंद नहीं होता है। तो जन्नत में जब हमें अल्लाह तबारक तआला ठिकाना देंगे, तो हम सब भी क्या है, अल्लाह की तस्बीह इस तरह से करेंगे कि जैसे हम सब सांस लेते हैं। ठीक है। तो ये होगी अल्लाह की तहमीद और तस्बीह। और आप देखिए कि जिस तरह ना बे इख्तियार इंसान सांस लेता और छोड़ता है, इसी तरह अहले जन्नत की ज़बानों की जो हम्द होगी ना, वो हम्द क्या होगी? तस्बीह इलाही होगी, और अल्लाह की हम्द वो करेंगे और तरानों में रहेंगे हर वक्त। ये उनके ज़बानों पर हर वक्त लबरेज रहेगा। और फिर जो है ना, वो जो जब जन्नत में चले जाएंगे तो फिर वो एक दूसरे को सलाम भी कहेंगे। और उनको सलाम भी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? अस्सलामु अलैकुम। यानी एक दूसरे को वो इस तरह सलाम करेंगे कि फरिश्ते भी उन्हें सलाम अर्ज करेंगे। ठीक है। तो ये फ़ज़ीलत है उन लोगों की जो दुनिया में अच्छे-अच्छे काम करते थे ना, कितना अच्छा लगता है पढ़ते हुए इनके बारे में, और ये बस दिल चाहता है कि हम भी अल्लाह पाक इनमें शामिल हो जाए ना। तो देखिए काम भी तो करने पड़ते हैं ना, अल्लाह की बात भी माननी पड़ती है, और अपनी जो चीज़ें महबूब हैं उनको वो छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो अल्लाह तबारक तआला की नाफ़रमानी से अटैच्ड होता है, तो उन्हें छोड़ दे, जो अल्लाह को पसंद नहीं है उन चीज़ों को छोड़ दे। आयत देखिए, आयत नंबर 11। और अगर हम अल्लाह पर जल्दी से नुकसान वाक़ई कर दिया करते, और अगर अल्लाह लोगों पर जल्दी से नुकसान वाक़ई कर दिया करता, जिस तरह वो फ़ायदे के लिए जल्दी मचाते हैं, तो उनका वादा कभी पूरा हो चुका होता। सो हम उन लोगों को जिनको हमारे पास आने का यकीन नहीं है, उनके हाल पर छोड़ रखते हैं, अपनी सरकशी में भटकते रहें। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, वलो युअज्जिलल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिअजालहुम बिल खैरि लक़ुदिया इलैहिम अजलहुम। और अगर अल्लाह ताला उनको अज़ाब देने में जल्दी करता, जिस तरह वो भलाई में जल्दी करता है ना, जब जब लोग बंदे जो है भलाई मांगते हैं, अल्लाह तबारक ताला फ़ौरन भलाई अता फरमा देते हैं। उसी तरह अगर अल्लाह तबारक ताला उनको जो है वो अज़ाब देने में जल्दी करता, तो फिर क्या होता? दुनिया में कोई भी बाकी नहीं रहता, है ना? तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि जिस तरह इंसान खैर के तलब करने में जल्दी करता है ना, उसी तरह वो अगर इंसान ना शर यानी अज़ाब के तलब करने में भी जल्दी मचाता, और अल्लाह के पैगंबरों से कहता कि अगर तुम सच्चे हो, यानी वो जो लोग हैं अल्लाह के पैगंबरों से कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो ना, जो अज़ाब के बारे में तुम हमें बता रहे हो, तुम ज़रा जाके उन अज़ाब को ले आओ, क़यामत के बारे में डरा रहे हो तो क़यामत को ले आओ। जो भी अज़ाब के बारे में तुम हमें डरा रहे हो, तुम उसको ले आओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर उनके इस मुतालबे के मुताबिक हम जल्द अज़ाब भेज देते, तो कब की ये दुनिया ख़त्म हो चुकी होती और सब लोग मौत और हलाकत में ख़त्म हो चुकते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उन्हें मोहलत दे रहे हैं, उन्हें पूरा वक़्त दे रहे हैं। और दूसरा मायने ये भी है कि जिस तरह इंसान अपने लिए ना खैर और भलाई की दुआ माँगता है, जिन्हें हम कबूल करते हैं, यानी जिन्हें अल्लाह कबूल फरमाते हैं, उसी तरह जब इंसान गुस्से या परेशानी या झुंझलाहट या तंगी में होता है, तो अपने ही लिए और अपनी ही औलाद के लिए बद्दुआ करता है, जिन्हें अल्लाह इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये ज़बानों से तो हलाकत मांग रहा है, मगर उसके दिल में ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह इंसानों की बद्दुआ के मुताबिक उन्हें फ़ौरन हलाकत से दो चार करना शुरू कर दे, तो फिर जल्द ही ये लोग मौत और तबाही से दो चार हो जाया करें। इसीलिए हदीस में भी आता है कि तुम अपने लिए और अपनी औलाद के लिए और अपने माल और अपने कारोबार के लिए बद्दुआ मत करो। ठीक है? ना अपने लिए, ना अपनी औलाद के लिए, ना अपने सामान के लिए, ना अपने कारोबार के लिए बद्दुआ मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बद्दुआएँ सिर्फ़ उस घड़ी को पाले जिसमें अल्लाह की तरफ से वो दुआएँ कबूल की जाती हैं, बस वो तुम्हारी बद्दुआ कबूल फरमा ले। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है 1532। इससे क्या पता चलता है कि अक्सर ये भी होता है कि जो मेन ख़ासकर ख़वातीन हैं, तो वो जो है
चिड़चिड़ा जाती हैं या बीमारी की वजह से या मेंसेस जब होते हैं तो उसमें भी उनका थोड़ा-सा हार्मोन्स ऊपर-नीचे होता है। इसकी वजह से वो चिड़चिड़ी थोड़ी-सी गुस्सैली और जो है गुस्से में इसी वजह से वो अपनी ज़बानों से अपने औलादों के बारे में या अपने बारे में या अपने घर के बारे में या सामान के बारे में गलत बात कह जाती हैं, तो उन्हें नहीं कहना चाहिए। कहीं खुदा ना ख़ास्ता वो कबूलत की घड़ी हो गई तो फिर वो क्या है कहीं वो अल्लाह की बारगाह में कबूल ना कर लिया जाए। ठीक है? तो बहुत अलर्ट रहना चाहिए। कभी भी बद्दुआ ना निकालें अपनी ज़बानों से। तो हमेशा अच्छी बात निकालें, बेहतरीन बात निकालें। और एक ऐसी वाक़या है कि एक माँ थी और वो जो माँ थी तो उन्होंने अपने जो है उनके यहाँ मेहमान आ रहे थे। पुराने टाइप के जो लोग थे, पुराना ज़माना था। उनके घर में जब मेहमान आए तो सब खाना उन्होंने घर में बनाया, सब तैयारी की, सुबह से शाम उन्होंने बहुत तैयारियाँ की, सब कुछ किया, सब कुछ किया। लेकिन अचानक से उनके जो छोटा बेटा होता है वो आ जाता है और उसने छन्नी से छान के उनकी जो हांडी थी उसमें मिट्टी डाल दी। सारी की सारी हांडी खराब हो गई। अब कोई और माँ होती तो कितनी बच्चे को मारती, बददुआ देती ना, गालियाँ देती, सब कुछ करती। लेकिन वो जो माँ थी इतनी बेहतरीन माएँ हुआ करती थी कि उन्होंने कहा कि जा तू अल्लाह करे मक्के का इमाम बन जा। ये उनकी बददुआ थी। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो वाक़ई में खाने काबा के इमाम हुए और उनका नाम क्या है शेख सुदैस। शेख सुदैस अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि मेरी माँ की ये बद्दुआ है कि मुझे आज काबे का इमाम बना दिया गया। तो आप देखिए बद्दुआ भी अल्लाह सुनते हैं ना, इससे क्या पता चलता है। तो कभी भी दिल से जो बात निकल जाती है अल्लाह तबारक तआला उसको सुन लेते हैं। तो हमेशा अपनी औलादों के हक़ में, अपने हक़ में और अपने तमाम जो चीज़ें हैं और तमाम जो घर की जितनी भी हैं चीज़ें, ख़ास करके शौहर है, जो भी रिश्तेदार हैं, भाई-बहन हैं, वालिदैन हैं, कभी भी उनके बारे में गलत बात नहीं कहें, अच्छी-अच्छी बात कहें। ज़ुबान अल्लाह तबारक तआला ने दी है, तो इसका हिसाब-किताब भी होगा। तो अच्छी बात ज़ुबान से निकालें वरना क्या करें, ख़ामोश रहें। ठीक है? आयत देखिए, आयत नंबर है 12। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुँचती है, तो हमको पुकारता है, लेटते-बैठते भी, खड़े भी। फिर जब हम उसकी तकलीफ उससे हटा देते हैं, तो वो ऐसा हो जाता है गोया उसने अपनी तकलीफ के लिए जो इससे पहुँचती थी, कभी हमें पुकारा ही नहीं था। उन हद से गुज़रने वालों के अमाल उनके लिए इस तरह खुशनुमा बना दिया गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है एक सेल्फिश आदमी के बारे में, यहाँ बताया जा रहा है जो एक मतलबी इंसान है। कि जब उसको तकलीफ पहुँचती, परेशानी पहुँचती, मुसीबत पहुँचती है ना, तो वो क्या करता है अल्लाह को पुकारता है। वइज़ल मस्सल इंसाना दुर्रुन दअ लिजंबिही और काइदन और काइमा। जब इंसान को तकलीफ, परेशानी, मुसीबत पहुँचती है तो अल्लाह को पुकारता है लिजंबिही लेटे-बैठे और काइदन बैठे हुए और काइमा खड़े हुए। लेटे हुए, बैठे हुए और खड़े हुए। अल्लाह को हर वक़्त पुकारता है कि अल्लाह सुन ले, मेरी फरियाद सुन ले। मेरा फलाँ शख़्स बीमार है उसको उसको अच्छा कर दे या मेरी जो बिज़नेस लॉस है अल्लाह उसको बचा ले या मेरी जॉब लगा दे, अल्लाह ताला ये मुझे औलाद दे दे। हर वक़्त अल्लाह को पुकारे। लेकिन जब अल्लाह उसकी फरियाद पूरी कर देता है ना, उसके बिगड़ी भी बना देता है, उसकी दुआ कबूल कर लेता है, तो फिर अल्लाह को ऐसे भूल जाता है जैसे कभी उसने अल्लाह को याद ही नहीं किया था। तो जब इंसान आज़माइश से गुज़रता है ना, तो फिर अल्लाह को खूब याद करता है। तो आज़माइश डाली भी इसीलिए जाती है, ताकि वो हमें अल्लाह के और करीब कर दे, है ना? लेकिन अक्सर क्या होता है आज़माइशों में भी अल्लाह के करीब भी नहीं जाते हैं। तो जब आज़माइश आती है तो अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह से अल्लाह का जो है तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे और अल्लाह की रहमतों से ढाँप लेती है। तो अच्छी बात है अल्लाह के करीब हो जाए लेकिन जो दुनिया परस्त शख़्स होता है वो मतलब के लिए अल्लाह के पास तो आता है, फिर जब उसका मतलब पूरा हो जाता है, फिर वो अल्लाह को ऐसे भूल जाता है कि कभी अल्लाह को पहचाना ही नहीं था, कभी अल्लाह को उसने पुकारा ही नहीं था। अल्लाह है भी कोई, तो उसने कभी भुला देता है हमेशा-हमेशा के लिए जब उसके अच्छे दिन आ जाते हैं। तो ऐसे सेल्फिश मतलबी लोगों का यहाँ पे रवैये के बारे में बताया गया है। आप देखिए कि हमें नहीं पसंद है ना कि हमारे हमारे या आपसे कोई ऐसे शख्स से मुलाकात हो जिसके पास कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, वो बार-बार हमें कॉल कर रहा है, बार-बार हमें बुला रहा है, बार-बार हमें उसके पास जाना पड़ रहा है या बार-बार हमारे दरवाज़े को डोर को नॉक कर रहा है कि हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए, हमारी हेल्प कर दीजिए, हमारा हाँ, लेकिन जब फिर उसके दिन बढ़ जाते हैं, फिर वो अच्छी हालत में आ जाता है, उसके पास ऐश-इशरत, आराम और आराम के दिन आ जाते हैं, तो फिर वो भुला देता है। उसी शख्स को जिसने उसकी परेशानियों में साथ दिया ना, तो फिर कितना इंसान भला-बुरा कहता है। देखो कैसे मतलबी और खुदगर्ज़ है ना। जब परेशानी के दिन थे तो हमको पूछते थे, आज अच्छे दिन आ गए तो हमको भुला बैठे। अब सोचिए जब इंसानों का ये हाल है, तो जिसने अपने हर चीज़ दी है, हमारी तख़लीक की, हमें पैदा किए, हमारी साँसें दी, हमारे माँ-बाप दिए, सारी नेमतें दी हैं और फिर उसने फिर मुश्किलात भी दूर कर दी, हमारे अच्छे दिन भी अल्लाह तबारक तआला ले आए। फिर वो अच्छे दिन आने के बाद कैसे फिर अल्लाह को भूल जाते हैं वो लोग ना। तो उनके बारे में ऐसे रवैया बताया गया कि उसका नेचर है
वो भुला देता है अल्लाह को। तो ये इंसान की उस हालत का तज़किरा है जो अक्सर इंसानों का यही हाल है कि सारे के इंसान का नहीं, अक्सर यानी कुछ लोगों का और ज़्यादातर लोगों का यही हाल है। बल्कि बहुत सारे जो अल्लाह के मानने वाले भी हैं ना, इस काम में वो भी कोताही कर जाते हैं। यानी कि वो नमाज, रोज़ा, हज वगैरह आप करने वाले होते हैं, लेकिन जब मुश्किलात परेशानी होती है अल्लाह से बहुत दुआ करते हैं, लेकिन जब मुश्किलात परेशानी ख़त्म हो जाती है तो फिर वो अल्लाह से दुआ करना भी बंद कर देते हैं, तौबा करना भी बंद कर देते हैं, माफ़ी माँगना भी बंद कर देते हैं, अल्लाह की मोहब्बत माँगना भी बंद कर देते हैं। यानी मुसीबत के वक़्त खूब खूब अल्लाह अल्लाह हो रहा है, दुआएँ की जा रही हैं, तौबा इस्तग़फ़ार किया जा रहा है, तमाम हो रहा है। लेकिन जब अल्लाह ताला मुसीबत को हटा देता है, ख़त्म कर देता है, मुसीबत का वो कड़वा वक़्त निकाल देता है, तो फिर बारगाह इलाही में इबादत, ज़िक्र हर चीज़ से वो गाफ़िल हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी दुआएँ कबूल करके उन्हें आज़माइश में मुब्तला किया और फिर उन्हें मुसीबत से निजात भी दी और फिर इस पर अल्लाह का शुक्र करने की बजाय अल्लाह को भुला देते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ ज़िक्र हो रहा है। आयत देखिए, आयत नंबर है 13। और हमने तुमसे पहले बहुत से गिरोहों को हलाक कर दिया है, जबकि उन्होंने ज़ुल्म किया था कि हालाँकि उनके पास उनके पैगंबर भी दलाइल लेकर आए हैं और वो ऐसे कब थे कि ईमान ले आते। हम मुजरिमों हम मुजरिम लोगों को ऐसे ही सज़ा दिया करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हमने तुमसे पहले बहुत सारे गिरोहों को ऐसे ही हलाक कर दिया है कि जबकि उन्होंने ज़ुल्म किया है ना, शिर्क किया और रसूल की बात नहीं मानी। हालाँकि उनके पास ऐसा नहीं था कि उनको ऐसे ही ख़त्म कर दिया गया। उनके पास पैगंबर आए और बड़े-बड़े मौज़िज़ात और बड़ी-बड़ी आयात लेकर आए और फिर वैसे कब थे कि ना वो ईमान ले आते। और हम मुजरिम लोगों को ऐसी सज़ा दिया करते हैं। यानी जब अल्लाह तबारक तआला की तरफ से बात पूरी हो गई, पैगामात पहुँच गए और सारी बात क्या होगी, मुकम्मल हो गई, तब फिर उनको अज़ाब ने आकर घेर लिया। तब फिर क्या है, हुज्जतें तमाम हो गई। आयत 14 देखें, फिर उनके बाद हमने दुनिया में बजाय उनके तुमको जानशीन किया ताकि हम देख लें कि तुम किस तरह काम करते हो। आयत 15 देखें, और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं जो बिल्कुल साफ-साफ है, तो ये लोग जिनको हमारे पास आने की उम्मीद ही नहीं है, वो यूँ कहते हैं कि उसके सिवा कोई और दूसरा कुरान ले आओ या इसमें कुछ बदल करके दे दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ कह दीजिए कि मुझे ये हक नहीं है कि मैं अपनी तरफ से इसमें बदल कर दूँ। बस मैं तो सिर्फ़ उसका इत्तिबा करूँगा जो मेरे पास वही के ज़रिए से पहुँचता है। अगर मैं अपने रब की नाफ़रमानी करूँ तो मैं एक बड़े दिन के अज़ाब का अंदेशा रखता हूँ। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जब उनके पास जो है, ऐसे लोगों के पास में जब जो है अल्लाह की आयतें पहुँचती हैं और बिल्कुल साफ-साफ वाज़ेह आयात है, साफ-साफ अहकामात होते थे, तो वो क्या कहते थे कि तुम ऐसा करो, ठीक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा कुरान जो तुमने लिखा है वो सब अच्छा है, हम उसको मान लेंगे। बस तुम क्या करो, इसमें से जो है जो तौहीद की आयत है उन्हें निकाल दो और जिसमें हमारे माबूदों के बारे में गलत बात कही गई है उनको हटा दो। बाकी तुम्हारे कुरान में तो बहुत अच्छा तुमने लिखा है ना, कहते थे लिखा है। आप देखिए ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुशरिकीन के सामने कुरान करीम की इन आयतों की तिलावत फरमाते थे ना, जिनमें तौहीद के बारे में बताया गया है और शिर्क बिल्लाह की तरदीद की गई है, तो क़यामत और जज़ा और सज़ा का भी इनकार करने वाले जो मुशरिकीन हैं ना, बतौर चैलेंज और मजाक के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे, कुरान, ये जो कुरान है ना, इसके अलावा कोई और कुरान ले जिसमें हमारे बुतों की ऐब जोई ना हुई हो, या उन आयतों के बदल दो जिसमें हमारे बुतों की ऐब बताए गए हैं और हमें इससे तकलीफ पहुंचती है। दूसरी आयतें तुम लेकर आ जाओ जिन्हें सुनकर हमें तकलीफ ना पहुंचे। तो अल्लाह ताला ने उनके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहने का हुक्म दिया है कि मैं इसमें अपनी तरफ से एक हरफ भी तब्दील नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ़ अल्लाह का हुक्म बजाने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ़ अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम इस कुरान के अलावा कोई दूसरा कुरान ले आओ, या तो तुम क्या करो, इसमें तहरीफ़ कर दो, बदल दो, चेंज कर दो। तो आप वसल्लम से कहा गया है कि तुम कह दो कि मैं तो सिर्फ़ अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाला हूँ। मैं तो इसमें एक हर्फ़ बराबर भी कोई भी तब्दील या चेंज नहीं कर सकता। मेरे पास तो मैंने नहीं लिखा है, सो मेरी तरफ तो ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल होती है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं माशरे में, उस वक़्त भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे, जो उनको कुरान के अहकामात पसंद नहीं आते हैं। कुरान की जो बातें हैं, अल्लाह की बातें हैं, उनको पसंद नहीं आती हैं। यानी जो सही तौर पर आखिरत को नहीं मानते हैं, उनका अकीदा कहीं न कहीं डगमगाया होता है, तो वो कुरान के मुताबिक अपने आप को बदलने के बजाय कहते हैं कि वो कुरान को ही बदलना, तब्दील करना चाहते हैं। ठीक है? तो ऐसे इस तरीके के जो लोग होते हैं, यानी उन्होंने अपने काम नहीं बदले, अपनी ज़िंदगियाँ नहीं बदली और अपने आप को नहीं बदला, और वैसे लोग क्या करते हैं, कुरान में एतराज़ात करते हैं।
कहते हैं ये आयत पे ऐसा क्यों है, वो आयत में ऐसा क्यों है। तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि दरअसल क्या है, आप सल्लम इन लोगों से फरमा दीजिए कि मैंने तो ये क्या है, मेरी तरफ तो ये नाजिल हुआ है अल्लाह की तरफ से। मैंने तो क्या किया है, इसमें कुछ भी एक लफ्ज़ भी नहीं ऐड किया है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। आयत देखिए, आयत नंबर 16। आप यूँ कह दीजिए कि अगर अल्लाह को मंज़ूर होता, तो ना तो मैं तुमको वो पढ़कर सुनाता और ना अल्लाह ताला तुमको उसकी इत्तिला देता, क्योंकि मैं इससे पहले तो एक बड़े हिस्से उम्र तक तुम्हारे दरमियान में रह चुका हूँ। फिर क्या तुम अक्ल नहीं रखते हो? यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप देखें कि एक बड़ी-सी तवील ज़िंदगी उनके दरमियान गुज़ारी, और तुम जानते भी हो यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान जो थे तकरीबन 40 साल तक रहे, उन्हीं के अंदर रहे ना, मक्का वालों के दरमियान रहे। 40वें साल रसूल वसल्लम को नबूवत से सरफराज फरमाया गया। तो कहा जा रहा है, क्या मैंने किसी उस्ताद से सीखा है? तुम 40 साल तक कि तुमने मुझे देखा, मेरी परवरिश देखी, मेरे ऊपर निगाह रखी, तो क्या तुमने कहीं देखा कि मैंने किसी उस्ताद से सीखा है, पढ़ाई सीखी है, टीचर लगे थे? क्या कहीं मैं मदरसा गया था? इस तरह तो मेरी अमानत और सदाकत के भी तुम कायल ही रहे हो कि मैंने कहीं भी कुछ भी नहीं सीखा, किसी उस्ताद से नहीं सीखा, ना मुझे किसी ने टीचिंग किया है। अब ये मुमकिन है कि मैं अल्लाह ताला पर इफ्तरा बाँधना शुरू कर दूँ? मतलब कि ये क्या पॉसिबल है कि मैं अल्लाह पर झूठ बाँध दूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने मुझ में जो है वही भेजी है, मेरी तरफ वही नाज़िल हुई। मतलब ये है कि ये कुरान अल्लाह का नाज़िल करदा है, ना मैंने किसी से सुना है और ना मैं इसे बयान कर रहा हूँ, और ना ये यूँ जो है झूठ-मूठ इसे अल्लाह की तरफ से मैं मंसूब कर रहा हूँ। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, जिससे मैंने क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझ पर अल्लाह की तरफ से वही की गई है। आयत देखिए, आयत नंबर 17। सो उस शख्स से ज़्यादा कौन ज़ालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ बाँधे या उसकी आयतों को झुठला दे। यकीनन ऐसे मुजरिमों को इस्लाहन फलाह नहीं होगी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, वो सब ज़ालिम हैं जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बाँधा है, जो झूठ बाँधते हैं ना। आप देखिए अक्सर जो लोग होते हैं, कोई भी बात ही कहकर फैलाने में मशगूल हो जाते हैं कि हमने कुरान ही पढ़ा है, और अपनी बात मनवाने के लिए अब कोई बात पे बहस छिड़ी तो कहते हैं हमने कुरान ही पढ़ा है, हमने कुरान ही पढ़ा है, हालाँकि उसने कुरान में नहीं पढ़ा होता है। ना कोई इल्म या कोई दलील, ना कोई ऐसा कोई पूरे पक्का श्योर होता है, फिर वो भी यही कहता है कि अपनी बात कोई लोग लोग मान जाए तो मैंने कहा है, मैंने कुरान ही पढ़ा है। तो तहकीक उसने क्या है, झूठ गढ़ा है। अगर किसी ने ऐसे कह दिया कि मैंने कुरान ही पढ़ा है, हालाँकि उसने कुरान में नहीं पढ़ा है, तो तहकीक दरअसल उसने क्या है, श्योर उसने झूठ गढ़ दिया है। तो जब इल्म हासिल कर ले तभी कहे कि इस तरह के झूठ को ख़त्म किया जा सकता है ना। तो आप देखिए कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये चीज़ कुरान में है, वो चीज़ कुरान में है, हालाँकि वो चीज़ कुरान में नहीं होती है। तो ये बात पकड़ी कैसे कैसे जा सकती है? जब उसने खुद इल्म हासिल किया होता है, जब उसने खुद हर आयतों पे गौर-फ़िक्र किया हो जाता है। कुरान के ऊपर कहते हैं कि मैंने कुरान ही पढ़ा है तो आप इसको फ़ॉलो करें। तो आप अगर आप रिजेक्ट कर देंगे तो आपको डर लगेगा, नहीं मानेंगे तो आप डरेंगे। और अगर आप पढ़े लिखे होंगे, आपको मालूम होगा कि वाक़ई में ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि वाक़ई में अल्लाह की तरफ से नहीं है। और अक्सर जो कुरान की आयत को और हदीस को बिना इल्म के फैलाना भी नहीं चाहिए, जो अक्सर होता है। पहले आप देखिए कौन-सी आयत है, उसके बारे में क्या दलील है, क्या सही है, क्या नहीं सही है ना? क्योंकि अल्लाह पर झूठ बाँधने वालों पे क्या है, वो ज़ालिम है। और आप देखिए जो है आप वसल्लम के बाद मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने यही दावा किया था, झूठी नबूवत का दावा किया था कि मैं जो है अल्लाह का रसूल हूँ, आखिरी नबी हूँ, मुझ पर वही आती है। तो वो क्या है, इस तरह से जिन लोगों ने इस तरह से जो झूठ गढ़ा वो दरअसल क्या है, वो सब क्या है, ज़ालिम हुए। तो आप देखिए कि इसी तरह से फिर यहूद नसारा ने भी अल्लाह के बारे में झूठ गढ़ा, है ना? यहूद ने कहा उज़ैर सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नसारा यानी ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। फिर मुशरिकीन मक्का ने कहा कि ये परियाँ, ये जो मलाइका हैं, ये फरिश्ते हैं, ये अल्लाह की बेटियाँ हैं, है ना? तो ये सब क्या है, इस तरह से झूठ गढ़ा है। और तमाम लोग इस तरीके से जो बातें इधर-उधर फैला देते हैं, हालाँकि वो उन्होंने तहकीक नहीं की होती, वो सब क्या है, इसी की कैटेगरी में आ जाता है। कुरान की कोई भी आयत, कोई भी हदीस बहुत अलर्ट, बहुत मोहतात होकर लोगों को भेजें। पहले खुद तहकीक कर लें, पहले पक्का श्योर कर लें, फिर लोगों को भेजें, वरना क्या करें, इसको ऐसे मत लोगों को शेयर करें। बस इधर से मैसेज आए, उधर से मैसेज आए, बस क्या है, उधर-उधर, उधर-उधर बस सब जगह शेयर कर दिया। सोचते हैं कि हमने नेकियाँ कमा ली, नहीं, नेकियाँ नहीं है वो। कहीं ऐसा ना हो ये आखिरत में क्या है, हुज्जत बन जाए अल्लाह के यहाँ और पकड़ हो जाए, है ना? तो बहुत अलर्ट रहा करें इस मामले में। आयत देखिए, आयत नंबर 18। ये वो लोग हैं और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं
जो ना उनको नुकसान पहुंचा सकती है और ना उनको नफा पहुंचा सकती है, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से हमारे सिफारिशी हैं। तो आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को और ऐसी चीज़ों की खबर देते हो जो अल्लाह ताला को मालूम ही नहीं है, ना आसमानों में और ना ज़मीन में है, वो पाक है और बरतर है और उन लोगों के शिर्क से। कुल अतुनब्बिऊना अल्लाह बिमा ला तालमू फिस समावाति वला फिल अर्द। उनसे कहा जा रहा है कि जो ये कहते हैं कि अल्लाह के पास से हमारी सिफारिशी हैं, तो आप क्या कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसे चीज़ों के बारे में खबर देते हो जो अल्लाह को मालूम ही नहीं है, जिसे अल्लाह जानता ही नहीं। यानी अल्लाह को तो इस बात का इल्म ही नहीं है कि उसका कोई शरीक भी है ना, या उसकी बारगाह में कोई सिफारिशी हो। यानी कि ये लोग बता रहे हैं कि ये मेरी जो है अल्लाह के यहाँ सिफारिश करा देंगे, और हालांकि अल्लाह को जैसे लगता है मालूम ही नहीं है। अगर अगर कोई होता सिफारिशी तो अल्लाह ताला बताते, देखो ये मेरे सिफारिशी, तुम्हारी तुम्हारी सिफारिश करा दी जाएगी, फला फला जो है औलिया है, अंबिया है, ये तुम्हारी सिफारिश करा देंगे। तो अल्लाह ने तो कोई ऐसा कोई सिफारिश मुकर्रर ही नहीं किया, तो ये लोग कहाँ से ऐसे गुमराह होके चल दिए हैं। तो एक तरह से सवालिया अंदाज है कि ये जो लोग हैं ना, उनको ऐसे जो अल्लाह के बारे में कहते हैं, अल्लाह को इस बात का क्या इल्म नहीं है कि उसका कोई शरीक भी है या उसकी बारगाह में कोई सिफारिशी भी होंगे। गोया ये मुशरिकीन अल्लाह को खबर देते हैं कि तुझे खबर भी नहीं है ना ऐसा सल्लम, लेकिन हम तुझे बतलाते हैं कि तेरे शरीक भी हैं और सिफारिशी भी, यानी कि ए अल्लाह आपके शरीक भी हैं और सिफारिशी भी है ना, नाउजुबिल्लाह। इस तरीके से ये लोग इस तरीके से चैलेंज करते हैं, तो अपने अकीदतमंदों की सिफारिश वो करवाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक ये डाँट है, डाँटा जा रहा है उनको कि तुम कहते हो कि जिन लोगों को अंबिया, औलिया, वली, है ना, मज़ार वाले, बुत परस्तिश, ये जितने भी बुत परस्तिश करने वाले, सब लोग ये कहते हैं कि मेरी अल्लाह से सिफारिश करा देंगे। क्या तुम अल्लाह को खबर दे रहे हो कि अल्लाह की सिफारिश करा देंगे? कुल अतुनब्बिऊना, क्या तुम अल्लाह को खबर दे रहे हो क्या? क्या अल्लाह को मालूम नहीं है कि अल्लाह के यहाँ सिफारिश ही करा सकता है? कौन ही सिफारिश करा सकता है? सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून, वो पाक है और बरतर है उन लोगों से, शिर्क से, उन लोगों के शिर्क से। कि अल्लाह ताला ने फरमाया मुशरिकीन की ये बातें बेअसल हैं। अल्लाह ताला उन तमाम बातों से पाक और बरतर है। तो अल्लाह तबारक ताला की तो सिफारिश उसी की जाएगी जिसको वो इजाज़त दे दे। जैसे हम लोग ने आयतुल कुर्सी में आयत में पढ़ा था ना कि अल्लाह तबारक ताला की यहाँ सिफारिश उसी की कबूल की जाएगी जिसको अल्लाह खुद इजाज़त दे दे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफ़ात करेंगे सबकी, है ना, शिफ़ात कुबरा और फिर शिफ़ात सुगरा का इख्तियार उनको अल्लाह तबारक तआला देंगे, लेकिन अल्लाह की इज़्ज़त से वो भी होगा। बगैर अल्लाह की इज़्ज़त से किसी का कोई भी कोई सिफ़ारिश करा ही नहीं सकता है। तो इतने बड़े-बड़े जब गुनाह करके आ रहा है, ज़ुल्म करके आ रहा है, झूठ गढ़ के आ रहा है, अल्लाह के साथ बहुतान तराशी लोग करके आ रहे हैं, शिर्क करके आ रहे हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं ये बुत जिनकी हम इबादत कर रहे हैं ये अल्लाह की हमारी सिफारिश करा लेंगे, ये मज़ार वाले पीर वली औलिया हमारी अल्लाह से बख्शिश करवा लेंगे, ये हमारे अब्बा अम्मा जो भी हैं दुनिया से चले गए हैं, पीर वली औलिया हैं, ये हमें बचा लेंगे। तो दरअसल ये क्या है, ये बिल्कुल गलत बात है। बस वो क्या है, एक धोखा है, धोखा और कुछ नहीं है। मौत आती है, सारे धोखे खत्म हो जाते हैं। आइए देखिए आयत नंबर 19 है, और तमाम लोग एक ही उम्मत के थे, फिर उन्होंने इख्तिलाफ पैदा कर लिया, और अगर ये एक बात ना होती जो आपकी रब की तरफ से पहले ठहर चुकी है, तो जिस चीज़ में ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं उनका कतई फैसला हो चुका होता। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि सब लोग क्या थे, इस्लाम जब आया दुनिया में सब लोग क्या थे, एक उम्मा थे, एक उम्मत थे, वाहिद थे, यानी सब के सब तौहीद पर थे। कोई भी बँटा हुआ नहीं था ग्रुप में, ना तो कोई उस वक़्त हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, सब के सब क्या थे, सिर्फ़ मुसलमान थे। वो तो फिर नूह अलैहिस्सलाम के वक़्त में ये हुआ, लोगों ने क्या किया, बुतों की इबादत शुरू कर दी, फिर क्या हुए, लोग गिरोह में बँट गए। आज आप देखिए कि अल्लाह ने सारे इंसानों को बनाया, है ना? और कई-कई सौ आज जो रिलीजियस आज मौजूद हैं, कैसे गिरोहों में लोग बँट गए, लाखों-लाखों, और लाखों नहीं तो कम से कम सैकड़ों गिरोह में तो लोग बँट ही गए हैं आज। लेकिन दरअसल क्या है, अल्लाह तबारक तआला ने सबको बनाया ही इसीलिए था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की जाए। और शुरू में सब जब इस्लाम आया सब लोग क्या थे, तौहीद पर थे, लेकिन कुछ सालों के बाद क्या हुआ, दुनिया में लोग शिर्क में मुब्तला हो गए, और फिर शिर्क में मुब्तला हो गए, फिर लोगों में इख्तिलाफ हुआ ना, तौहीद और क्या हुआ, तौहीद और जो है बुत परस्तों का कि जो हक है और बातिल है उनमें क्या हुआ, इख्तिलाफ हुआ, फिर एक दूसरे से क्या करने लगे, अलग अलग थलग हो गए। जो तौहीद वाले थे उन्होंने जो है उन लोगों को दावत दी, लेकिन उन्होंने क्या किया, बातिल परस्तों ने, बुत परस्तों ने, उन्होंने हमेशा तौहीद का इनकार किया। वलौ या कलिमतुन सबक़त, यानी अगर अल्लाह ताला ने पहले ही फैसला ना कर लिया होता कि दुनिया में लोगों को मोहलत दी जाएगी ताकि वो अपनी अक्ल फ़हम से काम लेकर जिस रास्ते को चाहे इख्तियार करे और जिस रास्ते को चाहे छोड़ दे,
اور क़यामत के दिन उन्हें उनके अच्छे बुरे अमाल का बदला दिया जाएगा। तो कभी भी अल्लाह तबारक तआला हकीकत को बेनकाब करके उन लोगों को पकड़ चुका होता, और जो ईमान का रास्ता छोड़कर कुफ्र और शिर्क के रास्ते पर चल रहे हैं। ये दरअसल क्या है, उनको अगर छोड़ रखा है, टाइम दे रखा है, तो दरअसल क्या है, ये एक मोहलत है, ये एक ढील है। आयत देखिए, आयत नंबर 20। ये लोग यूँ कहते हैं कि उन पर उनके रब की जानिब से कोई निशानी क्यों नहीं नाज़िल होती है? सो आप फरमा दीजिए कि गैब की खबरें तो सिर्फ़ अल्लाह को हैं, सो तुम भी मुंतज़िर रहो, मैं भी मुंतज़िर रहता हूँ तुम्हारे साथ में। तो यानी इससे मुराद क्या है? वयक़ूलूना लौला उनज़िला अलैहि आयातुम मिन रब्बिही, और ये लोग यूँ कहते हैं कि उन पर उनके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं आती? तो इससे मुराद बड़ा मुअज़्ज़ा है, वाज़े जो है ना मुअज़्ज़ा है। जैसे कौम समूद के लिए ऊँटनी का जो ज़हूर हुआ था, फिर उनके लिए सफ़ा पहाड़ी को, उनके लिए वो क्या कहते थे? कहते थे कि अल्लाह के रसूल, हम आपकी बात का यकीन कर लेंगे कि अगर आपने सफ़ा पहाड़ी को सोने का बना दिया। वो ये डिमांड करते थे। या इन दोनों जो पहाड़ों के को ख़त्म करके उनके बीच से आप नहरें जारी करवा दें या बागात बना दें। तो इस किस्म के वो मुअज़्ज़ा जो है ज़ाहिर करने के लिए डिमांड करते थे, मतलूब करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप उनसे फरमा दीजिए, फ़कुल इन्नमा ग़ैब लिल्लाहि फ़ंतज़िरू, आप उनसे फरमा दीजिए कि गैब की खबरें तो सिर्फ़ अल्लाह ही की हैं, तुम इंतज़ार करो। यानी अल्लाह ताला चाहे तो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मुअज़्ज़ा तो ज़ाहिर करके दिखा सकता है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो ईमान नहीं लाएँगे, तो फिर अल्लाह का कानून ही यही है कि ऐसी कौम को फ़ौरन वो हलाक कर देता है। इसलिए इस बात का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी को है कि किसी कौम के लिए उसकी ख्वाहिश के मुताबिक मुआज़े ज़ाहिर कर देना या उसके हक में बेहतर है या नहीं है। और इसी तरह इस बात का इल्म भी सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी को है कि उनके मतलूबे मुआज़े अगर उनको ना दिखाए गए तो उन्हें कितनी मोहलत दी जाएगी। इसलिए आगे फरमाया, तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में से हो जाऊँगा। इसी के साथ ही आज की क्लास हमारी मुकम्मल हुई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।